Hello students, welcome back to my channel. How are you all? Alright, so in today's video, we are going to talk about the classification of hydrocarbons. If you have watched my previous video, in that also I introduced methane, which is the first member of alkene family, right? So saturated hydrocarbons, how we can define. In last video, I did not give the definition, so let's discuss the definition here. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which carbon-carbon single bond is present. It means all carbon valencies are satisfied by single bonds. They are called as saturated hydrocarbons. Okay, so these hydrocarbons include open chain and closed chain hydrocarbons. Okay, so what is it? When carbon makes open chain or when carbon is present in a straight chain on single bond and the single bond is present between carbon, we called as a open chain saturated hydrocarbon. इतना समझ में आया बच्चों? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? जब कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होगा, ओके, कोई रिंग फॉर्म नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, सो अभी हम इसको और कैसे डिटेल में समझ सकते हैं, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ओके, इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल. तो जैसे हमने कल किया था, फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, ओके, सेकेंड मेंबर इज इथेन, थर्ड मेंबर इज propane. Okay, so when I want to write these in straight chain or open chain, now for example C, as we know, if number of carbon atoms are 3, for 3 carbon we use prop. Okay, so propane. Now here when I am writing all hydrogen, when I am writing hydrogen in this form, when you can see all bonds in open chain, as you can see there is no ring has been formed here, means it is an example of open chain saturated hydrocarbon. Okay, बच्चों मैंने आपको कल लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि जब आप सारे बॉन्ड्स को शो करते हो तो वो उसको बोलते हैं हम एक्सपांडेड. ओके, ना अब मुझे इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है. कौन से फॉर्म में लिखना है? कंडेंस्ड फॉर्म में. तो चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं. देखो हमारे पास क्या है, एक C और 3 हाइड्रोजन. सो आई एम गोइंग टू राइट CH3. ओके, सेकेंड हमारे पास है एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन. सो आई एम गोइंग टू राइट CH2. एंड हमारे पास थर्ड है एक कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन. सो आई एम गोइंग टू राइट CH3. दिस इज नोन एज कंडेंस्ड फॉर्म. When you show all the bonds, known as expanded. When you show only the atoms present in the compound, known as condensed form. Condensed means एक साथ सबके पास. Okay, you cannot see any bond. So this is known as condensed. Condensed milk wala condensed. Okay, condensed formula. Is this clear? So you can see in this formula, in this compound, there is no ring. Means it is an example of open chain. समझ में आया बच्चों इतना? चलो अब आप लोग ट्राई करो ब्यूटेन का लिखने की. सेम वे ब्यूटेन कैसे लिखेंगे? ब्यूट means what? Bute. As I told you, bute we use for 4 carbon atoms. चलो अरेंज करते हैं ब्यूट को. 1 2 3 4. बहुत ही इजी तरीका है इसको लिखने का. कैसे लिखते हैं हम? पहले 4 कार्बन एटम्स लिख लो. ओके, अब एक एक कार्बन एटम की वैलेंसी को कंप्लीट करो. वी नो दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट. फॉर दिस कार्बन एटम वर्क वैलेंसी इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड. रेस्ट वैलेंसीज यू हैव टू सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन. ऑलराइट, सो व्हाट I got C and 3H. Simultaneously I am writing here CH3. Then we have bond. I have put bond here. Now carbon. Now we can see for this carbon 1
Two valencies are already satisfied. Rest 2 will be satisfied with hydrogen. What did we get here? We got CH2. So इसके पास में लिखो CH2. ठीक है. अब हमारे पास सेकेंड एक और कार्बन एटम है. अगेन इसकी भी 2 वैलेंसी satisfied with other carbon atoms. Okay. So rest 2 you will satisfied with 2 hydrogen atom. You will write CH2 again. Now last one satisfied with 1. We got CH3. So CH3, CH2, CH2, CH3 is nothing but your butane. Okay? कोई भी चेन स्ट्रेट प्रेजेंट होती है, कोई भी चेन अगर ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो आप उसको एन ब्यूटेन भी कह सकते हो. Okay? N is nothing but normal. Normal here, not now normal and abnormal. I'm not talking about that. This normal stands for straight chain. Okay? Or open chain. Is this clear? Right? So now, this formula, when I'm saying for butane, I got CH3, CH2, CH2, CH3. Okay? Now here you can see, these two are the repeating unit. I am not teaching anything new that you have already done in chapter number 12. अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, IUPAC के रूल्स में, नॉमेनक्लेचर में, कैसे नाम देते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, क्यों देते हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ वीडियो ऑन IUPAC नॉमेनक्लेचर. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव रिटन हियर, CH3, CH2, CH2, CH3. अभी हमारे पास 4 कार्बन एटम्स है, सो इट्स नॉट अ बिग डील. बट जस्ट इमेजिन करो बच्चों कि अगर हमारे पास एक लंबी सी कार्बन चेन है, तो हम कितनी बार CH2 लिखेंगे. तो इसका एक तरीका और है, हम कैसे लिख सकते हैं, CH3, CH2. हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव CH2 हियर? 2 times. So just write whole twice and CH3. Okay. This is also the way to write the compound. All right. Now, as you can see, all carbon atoms are in one line in a straight chain. So I will write as N. How many carbon atoms? 1, 2, 3, 4. N butane. Okay. Now, अगर आप लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, तो we can write the isomers of butane. ठीक है. तो हम चलो आइसोमर्स लिखते हैं ब्यूटेन के. कैसे लिखेंगे हम इसको? ना हमारे पास टोटल 4 कार्बन एटम्स है. व्हाट आर आइसोमर्स? क्योंकि जल्दी जल्दी बताओ मुझे बच्चों को, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं जिनका isomers. What are isomers? Having same molecular formula but different structural formula. ठीक है. अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम कार्बन ब्यूटेन का? तो हमारे पास कितने कार्बन है? C4. 1, 2, 3, 4. C4 लिख दिया हमने बच्चों. अब हमारे पास हाइड्रोजन है. क्यों मेरा फोकस कार्बन एंड हाइड्रोजन पे ही है? बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. तो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 3 + 2, 5 + 2, 7 + 3. कितने हैं? 10. ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अब जब मैं आइसोमेरिज्म लिखूंगी, किसका? आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी दिस, बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट. सच फिनोमिनॉन इज नोन एज आइसोमेरिज्म. ओके, चलो लिखना शुरू करते हैं. अब हम इसको मैं पूरा इरेज करती हूँ. ठीक है. हम शुरू से लिखेंगे एन ब्यूटेन, देन आइसोब्यूटेन एंड देन नियोब्यूटेन. I hope you guys are familiar with these 3 terms. So let's start. N-butane. So N-butane को हम लिखते हैं N. And I told you it's normal straight chain. ठीक है. तो हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं. So I'm going to write CH3, CH2, CH2, CH3. ठीक है. ये हमारे पास ब्यूटेन हुआ. ओके. तो ये हमारा एन ब्यूटेन हुआ. अब इसका आइसोमर क्या होगा? जिसका स्ट्रेट चेन में
नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे. चलो मैंने अब इसको, व्हाट्स द फर्स्ट रूल ऑफ IUPAC? First rule, you have to select the longest continuous carbon chain. So I don't have any other option in this butane. I have to take all the possible number of carbon atoms in one chain that I have taken. Now, for this isomer of N-butane, I can write in this way. Okay? How many side chain it has? 1. किसी भी straight chain की one side chain होती है, हम उसको prefix देते हैं iso. क्या देता है बच्चों? आइसो. आइसो का मतलब वन साइड चेन. वन साइड चेन. ओके, अब चलो, सेटिस्फाइड ऑल द वैलेंसीज फॉर दिस कार्बन आइटम. वन valency is satisfied with this carbon atom. Rest I am going to satisfied with 3 hydrogen. Okay, now for this carbon, see here बच्चों, 1 2 3 are satisfied with 3 other carbon atoms. I am left with what? 1. I am going to write 1 hydrogen next to this. This is 1 carbon atom satisfied only 1 valency. Rest we will satisfied with 3 hydrogen, and this is 3 hydrogen. Carbon atoms present at the corner known as terminal carbon atoms. Okay. Now here, when I am going to select the chain, which chain I have to select? Longest continuous carbon chain. So I have selected this. Now the carbon atom which we have not included in our main chain, we considered as a substituent. Okay, substituent. तो क्या substituent है हमारे पास? The name of this substituent is methyl. बच्चों very important है, any word ends with YL we called as a substituent. Methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl, hexyl, heptyl and so on. So any word ends with YL known as substituent. तो हमारे पास methyl as a substituent है. चलो अब हम इसका देखते हैं क्या हमारा molecular formula same है. Total number of carbon atoms in this 1 2 3 4. कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 3 + 1 4 + 3 7 + 3 yes 10. तो हमको क्या मिल गया? C4H10, same molecular formula, so we can say yes, isobutane is also isomer of N-butane. तो ये तो हमारा हो गया isomer name. अब हम IUPAC name कैसे लिखेंगे? Give the numbering. Now main chain number, I'll use a different color pen so it will be very easy to you all. Okay, सब clearly visible है? तो चलो अब मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ. स्टार्ट फ्रॉम हियर. 1 2 3. इज इट विजिबल? आई डोंट थिंक सो इट्स विजिबल. आई चेंज द इंक अगेन. ओके, चलो ये 1, ये नंबर 2 कार्बन एटम, नंबर 3 कार्बन एटम. तो जब हमने नंबरिंग स्टार्ट की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट, हमारे सेकेंड नंबर कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना. अब अगर हम स्टार्ट राइट टू लेफ्ट करते हैं तो क्या करना है? तो 1 2, definitely at second position we are getting methyl as a substituent. So I can write first substituent. The position of substituent is 2. Which substituent is present? Methyl, root word, 3 carbon atom, prop, and all single bond A. This is the IUPAC nomenclature to methyl propane. ठीक है, चलो अभी हमारे पास मिला ये नंबर 1 ब्यूटेन, नंबर 2 ब्यूटेन, नंबर 3 ब्यूटेन. चलो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं. तो अभी हमने देखा इसका N ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. अभी थर्ड होता है नियो. क्या हमारा नियो ब्यूटेन इज पॉसिबल? कैन बी राइट नियो ब्यूटेन फॉर N ब्यूटेन? लेट्स ट्राई. तो पहले लिखने से पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज नियो. नियो का मतलब होता है व्हेन वी हैव 2 साइड चेन. ओके, तो अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4. वी कैन नॉट मेक, इफ आई पुट 1 कार्बन एटम हियर, सो दिस साइड विल बी एम्प्टी, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ब्यूटेन के अंदर ओनली 2 आइसोमर्स है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. नियो इज नॉट पॉसिबल.
इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, 2-methyl propane will be the IUPAC name of isobutane. ओके, तभी मैं आपको नियो वाला केस में दिखा देती हूँ. उसके बाद विल टॉक अबाउट साइक्लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, जल्दी से ट्राई करो आप लोग भी ब्यूटेन पेंटेन का लिखने का. चलो, पेंटेन कैसे लिखेंगे हम? वीडियो पॉज करो, लिखो पेंटेन का. कैसे लिखेंगे पेंटेन? पेंट मतलब कितना, हमने कल क्या किया था? पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम्स. एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड. ओके, तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको एन पेंटेन लिखना है. एन का मतलब क्या है बच्चों? एन का मतलब है व्हेन कार्बन एटम्स अरेंज इन स्ट्रेट चेन, ऑल्सो नोन एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 4 एंड एक कार्बन एटम और जोड़ना है. ठीक है, नाउ वी गॉट 1 2 3 4 5 कार्बन इज नथिंग बट पेंटेन. Satisfy the valencies for this carbon atom CH3 2, so it will be CH2 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 and CH3. ठीक है, ये हमारा बन गया एन पेंटेन. नाउ अब मुझे इसका आइसोमर लिखना है. ठीक है, अब आइसोमर मैंने आपको बोला था आइसो एन आइसो नियो. एन हमने लिख दिया है ना, आइसो पेंटेन. ठीक है, आइसो का मतलब वन साइड चेन. तो हमारा इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C5H3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 विच इज नथिंग बट द पेंटेन. ठीक है बच्चों, अब हमारे को आइसोपेंटेन लिखना है. तो आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या हमारा पॉइंट होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो चलो हम देखते हैं आइसोपेंटेन के हमको क्या करना है. मेन चेन के अंदर 5 है इधर. इन दिस मेन चेन वी विल पुट ओनली 4 कार्बन एटम. ओके, एंड 1 वी विल पुट एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, चल जल्दी वीडियो पॉज करके सेटिस्फाइड करो वैलेंसीज को. यहाँ पे CH3 CH2 1 2 3 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो CH3 CH3. ठीक है बच्चों, क्या हमारे को सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला? हमको मिला C5H12. 1 2 3 4 5 3 3 6 7 8 9 10 11 12. तो हमको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया. ठीक है, चलो अब हम ट्राई करते हैं नियो की. नियो में क्या होता है? 2 साइड चेन होती है. तो 2 में से ये वाला एक कार्बन नीचे आ जाएगा, तो हमारी मेन चेन विल बी फॉर 3 कार्बन एटम. 1 2 3. ठीक है बच्चों, अब मैं एक इस पे यहां, एक इस पे यहां. ठीक है, चलो आप इसका नियोपेंटेन का और आइसोपेंटेन का मुझे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. ठीक है, चलो ये हमारा हो गया नियोपेंटेन. तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको क्या मिल गया? C5H12. तो हमारे पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? टोटल 3 एन आइसो नियो. इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, आपको क्या करना है? आपको आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. ठीक है बच्चों, चलो कॉपी करो जल्दी से. डन, इरेज करूं? ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सेन और साइक्लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और साइक्लोएल्केन्स. यू कैन राइट, यू कैन से एनीथिंग. ऑलराइट, तो अब चलो साइक्लोएल्केन्स. ठीक है, अब हम साइक्लोएल्केन्स कैसे करेंगे क्या? चलो बच्चों, अब क्या हमको पढ़ना है? साइक्लोएल्केन. हम साइक्लोएल्केन को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लिखेंगे इफ कार्बन एटम्स form a closed chain, okay, or ring, they are
called as cycloalkanes. ओके बच्चों, तो कोई भी सर्क्यूलर थिंग होगी, अगर कार्बन एटम ऐसे एक क्लोज चेन बनाएगा तो हम उसको साइक्लो ऐड करेंगे. साइक्लो जहां पे भी आपको एक कार्बन की चेन मिलेगी जो क्लोज्ड होगी, जो रिंग होगी, और सारे कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर वो एक सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसके पहले लगाएंगे साइक्लो. साइक्लो इज द प्रीफिक्स. Wherever you find cyclo as a prefix, it means that it's a closed chain. Okay? Alkane है तो सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम है, साइक्लोएल्कीन है तो डबल बॉन्ड है, साइक्लोएल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, चलो अब मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ साइक्लोएल्केन का. हम स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला मेंबर है एल्केन का मीथेन. तो मीथेन के अंदर साइक्लोएल्केन नहीं पॉसिबल है. अब आप बताओ मुझे क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसको क्लोज करने के लिए एक और कार्बन एटम चाहिए. बट मीथेन वी हैव ओनली वन कार्बन एटम, सो साइक्लोमीथेन इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड मेंबर क्या है हमारा? इथेन. फॉर्मूला C2H6. Shall we try to make a ring between two carbon atoms? So I can arrange CH3, CH3. But this is also not a cycloalkane because these two are arranged in the straight chain form. Right? Okay. स्पेलिंग गलत होगी लिखते लिखते. Okay, straight chain. तो अभी हमारा ये क्या है? तो मीथेन भी हम कह सकते हैं कि हमारा साइक्लोएल्केन नहीं है. ठीक है, साइक्लोइथेन इज नॉट पॉसिबल. चलो अब हम चलते हैं नंबर 3 पे. नंबर 3 हमारा कौन सा मेंबर है? हमारा है साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, अब मैंने पहले ही साइक्लो लिख दिया, मतलब क्या है? प्रोप. सो हमारा साइक्लोएल्केन स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम्स. So to make a ring we need minimum 3 carbon atoms. So arrange these 3 carbon atoms in this form. Can you see a ring? Yes. So again you have to satisfy carbon valencies with hydrogen. Each carbon atom valency, 2 valencies are satisfied by 2 other carbon atoms. So rest we have to satisfy with hydrogen. ठीक है बच्चों, तो CH2, CH2, CH2 wherever you find this ring type of structure, you have to use cyclo as a prefix. Number of carbon atoms 3, so we'll use prop, all bonded with single bond, propane. Okay? अब हम इसको लाइन स्ट्रक्चर से कैसे डिनोट करेंगे? तो जब हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट ईच पॉइंट, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट्स कार्बन एटम. ठीक है बच्चों, सेकेंड मेंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका क्या मैं इरेज कर दूं उसको? लिख लिया आप सबने? ऑल राइट. ओके, तो नेक्स्ट चलो, हमारा नेक्स्ट है 4 कार्बन एटम. तो हमारा फोर्थ है साइक्लोब्यूटेन. ठीक है बच्चों, तो ब्यूट मतलब हमको पता है कि हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन. ठीक है, अब मैं इन सबको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देती हूँ क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो रेस्ट वैलेंसी CH2, CH2, CH2 एंड CH2. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे एक रिंग बन गया. अब हम इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक स्क्वायर से. ठीक है, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट्स CH2 ग्रुप. ठीक है बच्चों, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. सेम वे cyclopentane. So cyclopentane will be like this. Cyclohexane will be like this. Okay, this is your cyclopentane and this is your cyclohexane. इतना समझ में आया बच्चा आप सबको? एनी डाउट? चलो, तो यहां हमने पूरा कर लिया है हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज नथिंग बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. चलो अभी अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन विच इज नोन एज अनसैचुरेटेड. ठीक है, तो अब हम अनसैचुरेटेड पे जाएंगे. हमने सैचुरेटेड में क्या बोला था? सारे कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड
प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? सो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन, थोड़ा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्ड से क्या मतलब है? या तो इनके बीच में होगा डबल बॉन्ड या होगा उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की बजाय अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, सो विल कंसीडर एज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। अब चलो, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, विल कंसीडर्ड एज or we called as alkenes, ओके। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, विल कॉल्ड एज एल्काइंस, ओके। तो जब आपके पास ईन आ रहा है, ईन सफिक्स है, जब आपके पास में ईन सफिक्स है मीन्स डबल बॉन्ड, जब आपके पास में आइन सफिक्स है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, जब आपके पास में एन सफिक्स है मीन्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। सिंगल बॉन्ड के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, ओके। ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। नाउ, जब हमारे पास डबल डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड रहता है एल्काइंस, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी से आपको इसके एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। तो जब हमारे पास में फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों। अब हम इसको कैसे नाम देंगे? कितने कार्बन आइटम है हमारे पास? 2। फॉर 2 कार्बन आइटम वी राइट एथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हमको पता है जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तब हम क्या सफिक्स यूज करते हैं? ईन करते हैं, सो इथीन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। Why you no need to give the position of double bond? Reason, because you start numbering from left to right or right to left. We have only 2 carbon atoms. In both the condition, you are getting double bond at number 1 position. Okay, but keep in mind when you have more than 2 carbon atoms, that time you have to give the position to the double bond. Okay. So let's take the other example, CCC. अब जैसे हमने CCC के आपके दिमाग में आएगा, अरे 3 कार्बन आटम we use what? Prop. Okay. Now, as you can see right now, all are single bonds. So I'm going to make one as a double bond. ठीक है बच्चों। तो अब मेरे को क्या करना है? इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, तो 2 ऑलरेडी हो चुकी है CH2, इस कार्बन की 3 ऑलरेडी हो चुकी है, तो सॉरी इट्स ओनली H, एंड इसकी CH3, ओके। सो हमारे क्या बन गया? ये प्रोपीन, ओके। सो इसको मैं 1 प्रोपीन भी ले सकती हूँ और प्रोपीन भी ले सकती हूँ, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलो अब लास्ट हम देते हैं ब्यूट। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन ब्यूट, ओके। 1 2 3 4, ओके। अब मैंने डबल बॉन्ड एक यहां लगाया, एक में कार्बन 1 3 2 4, ओके। एक मैंने डबल बॉन्ड यहां लगाया। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करो, CH2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसकी हो गया 1 2 3 1 1 1 2 3। क्या नाम देंगे हम इसको? ये भी ब्यूटीन है, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीन, बट the name is different. Start numbering, you have to give the possible least number to the functional bond. So functional group is double bond here. You have to give possible least number to the double bond. So if I start numbering from right to left, I'm getting 1 position for my double bond. But if I start from left to right, 1 2 3, third position to double bond, which is wrong, okay. So for this compound, the name will be 1-butene, okay. 1 is the position of double bond, but is your root word which tells number of carbon atoms, ene is the functional group which is nothing but the presence of double bond, okay. Now here
If I start from here, 1, 2, second position double bond. If I start from here, 1, 2, second position is for double bond. So you can start numbering from any way. So I'm going to start from left to right. 1, 2, 3, 4. So I'm going to write 2 is a position of double bond. Number of carbon atom butene. 1 butene and 2 butene. Alright. So this is for the alkene. So this is for the alkenes. Now alkynes. Okay. So when you have YNE as a suffix, it means the presence of triple bond. Okay बच्चों. So हमारा first member क्या है इसके अंदर? CH triple bond CH. Number of carbon atoms, how many do we have? 2. So we'll write eth. Okay. Presence of double bond will gives you ethyne. So ethyne is the first member of alkyne family. Okay. Now second, or I'll write 3 carbon atoms. So yeah, 3 carbon atoms. And I'm going to put 1 as a double bond. 1 as a triple bond. So rest of the valency you have to satisfy it with hydrogen. Okay. How many carbon atoms? We have 3. So prop, presence of triple bond, propyne. ठीक है बच्चों. अब last but 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 double triple bond here, 1 triple bond here. Satisfy hydrogen. Satisfy the valency with hydrogen. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 and 3 plus 1 is 4. Okay. 1, 2, 3, 4. क्या होता है 4? But. Presence of triple bond ine. Position of double triple bond. 1, 2, 3, 4. You have to start from right to left to give the possible least number to your functional group. So you can write 1 butyne or but 1 ine. Okay. Now here start 1, 2, 3 and 4. Second position triple bond. Or if I start from here 1, 2, 3, 4. Second position triple bond. You can start numbering from any way. So I'm going to write 2 butyne or but 2 ine. Same way. Okay bachcho. So this is about the unsaturated hydrocarbon, which is our second classification of hydrocarbon. We are left with only one, which is our third classification, aromatic. Aromatic. Aroma means क्या होता है बच्चों? Aroma means good fragrance. Okay? Aroma means good fragrance. Okay? Now, what is aromatic hydrocarbon? Okay? So, aromatic hydrocarbon को हम कैसे define करेंगे? These are hydrocarbons. These are hydrocarbons which contain at least one special type of hexagonal ring of 6 carbon atoms with 3 alternate double bond. Okay बच्चों, so ये आपको नोट करना है. So आप लोग whenever you sit here to take my class, please maintain one notebook so that you can just note down everything. नहीं तो एक कभी किसी में तो it will be very difficult for you to find out during exam time. So आप लोगों को एक notebook maintain करनी है in which you can write my notes. Okay. So these are hydrocarbons which contain at least one special type of hexagonal. Hexa means 6 ring of carbon atoms with alternate double and triple bond. So first member of aromatic hydrocarbon is 6-membered ring containing 3 double bond which is present at alternate position. The name of this ring is benzene. Okay,
आपको फुल चैप्टर मिलेगा बेंजीन के ऊपर, वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओके द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ठीक है बच्चों, ये टॉपिक विल फिनिश एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स. ओके, तो पहला मेंबर हमारे पास हो गया बेंजीन. अब अगर एक बेंजीन रिंग और होगी तो इस दोनों आपस में फ्यूज हो जाएगी, which is known as naphthalene. Okay, this chapter is very long, so please stay with me. We'll rock the chapter. Okay, so we have done here classification of hydrocarbon. So next video we are going to talk about chemistry of alkanes, in which we are going to discuss alkanes, the structure, hybridization, geometry, bond angle, bond length, everything. Alright, till then, stay safe. Bye bye. Please like and share my video. See you, and don't forget to subscribe. Bye bye.